علم سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اپنے لیے مختلف موقع تلاش کر سکتا ہے۔ علم وہ کنجی ہے جس سے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ اور ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو خود کو علم کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن صرف انسان ہی علم حاصل کرتا ہے۔ صحیح اور غلط میں فیصلہ اور اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ علم ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب نے حصول تعلیم پر زور دیتا ہے۔ علم کے متعلق اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بچوں، اساتذہ ہمارے زندگی میں اہم رول ہوتا ہے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، خلوص و محبت اور محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور اپنے طالب علم کو ہمیشہ کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین کے بعد اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے اور ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور ہماری ہر پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں اور اسے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان شاگرد دنیا میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اور اپنے بہترین کردار و عمل سے پہچانا جائے۔ بچوں، آپ جانتے ہوں گے کہ یوم اساتذہ 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ 5 ستمبر 1888 کو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ، ماہر تعلیم و فلسفر سروپلی رادھا کرشنن پیدا ہوئے تھے۔ ان کی یوم پیدائش کو ہی یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب وہ ملک کے صدر منتخب ہوئے تو ان کے شاگردوں نے یوم پیدائش منانے کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اگر میری یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے طور پر مناؤ تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اسی وقت سے یوم اساتذہ پورے ملک میں جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن اسکولوں میں جشن کا ماحول ہوتا ہے اور مختلف طرح کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں اساتذہ کی اہمیت اور افادیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ طالب علم اپنے اساتذہ کو تحفے پیش کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اساتذہ پرنسل نو کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ یوم اساتذہ منانے کا ایک مقصد اساتذہ کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ وہ جس خلوص اور نیک نیت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ واقعی قابل تعریف اور لائق تحسین ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کی ہر بات کو غور سے سنیں۔ ان کی باتیں اور نصیحت گرچہ آج آپ کو سخت معلوم ہو رہی ہو، لیکن یہی چیزیں مستقبل میں آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے۔ بچوں کو آئین کی اہم باتوں کی جانکاری ضروری۔ جناب والا، آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہماری سب سے اہم قانونی کتاب ہے اور ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے جو اس آئین کے خلاف ہو۔ جس طرح ہر کام کرنے کا ایک طریقہ یا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی ملک کے قانونی نظام و حکومت کو چلانے کے لیے بھی کچھ اصول و قاعدہ ہوتے ہیں۔ ان اصولوں اور قاعدوں کا نام اردو میں آئین یا دستور، ہندی میں سنویدھان اور انگریزی میں کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارے آئین کب لاگو ہوا؟ 26 جنوری 1950 کو، لیکن آئین ساز اسمبلی اسے 26 نومبر 1949 کو اختیار کر چکی تھی۔ آئین ساز اسمبلی کیوں بنائی گئی تھی؟ بھارت کا آئین تیار کرنے کے لیے نومبر 1946 میں آئین ساز اسمبلی تشکیل پائی۔ اس اسمبلی نے یہ ذمہ داری ڈرافٹنگ کمیٹی کو سونپ دی تھی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے اور
मिसेस B.N. रॉय थे। भारत के आइन की तहमीद यानी प्राइम्बल में किन किन बातों को शामिल किया गया है? उसमें दीगर बातों के साथ साथ भारत को सेकुलर अवामी जमहूरिया बनाने और उसके तमाम शहरियों को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ दिलाने और कौम के इत्तेहाद और शामिलियत को यकीनी बनाने की बात कही गई है। हमारे आइन में कितनी दफ़ात हैं? हमारे आइन में 395 395 वक़ात, दफ़ात और 12 शेड्यूल हैं। ये शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल में वो तफसील जानकारी दी जाती है जो दफ़ा में देना मुमकिन नहीं होता। जैसे 7वें शेड्यूल में 3 फहरिस्तें हैं जिनमें वो अंदराज शामिल हैं जिनकी बाबत मरकज़ी सरकारी और रियासती सरकारी कानून बना सकती हैं। हमारे आइन में आवाम को कौन कौन से अहम हुकूक़ हासिल हैं? आइन के तहत हमें बहुत से हुकूक़ हासिल हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत बुनियादी हुकूक़ की है जिनकी मुख्तसर तफसील दर्ज है। बरादरी का हक़, बराबरी का हक़, दफ़ा 14। कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा। किसी का नाम क्या है, मज़हब क्या है, क्या रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो हमारे क्लास में कुछ बच्चों की फ़ीस कम और कुछ को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है। कमज़ोर और पासमानदा तबका और दर्ज फहरस्त ज़ातों और कबीलों से ताल्लुक़ रखने वालों को सब के बराबर लाने के लिए बहुत सी रियायतें दी जाती हैं। उनमें मुख्तलिफ़ शोबों और इदारों में उनके लिए ज़ेर रोशनी भी शामिल है। उसे तफरीक या भेदभाव नहीं कहा जाएगा। तालीम का हक़ 21 अलिफ। आइन के तहत तालीम का हक़ एक बुनियादी हक़ है और यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो मुफ्त और लाजमी तालीम देने का इंतज़ाम करे। निजी आज़ादी का हक़, दफ़ा 21। किसी भी शख्स की गैर कानूनी तरीके से जान नहीं ली जा सकती और ना उसे कैद में रखा जा सकता है। मज़हब, नस्ल, ज़ात, जिन्स, मकाम, पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दफ़ा 15। हर शख्स को उस बात की आज़ादी है कि वो किसी भी दुकान, रेस्तरां, होटल या तफरीह की जगह से जा सके और कनुआ, तालाबों, अशनान घाटों, सड़कों और तमाम आम सहूलियात का फ़ायदा उठा सके। मजहबी आज़ादी, दफ़ा 25। आइन के तहत तमाम लोगों को कोई भी मज़हब मानने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, दफ़ा 29। आइन के तहत अक़लियतों को ये हक़ हासिल है कि वो अपने सक़ाफ़ती हुकूक़ जैसे अपनी ज़ुबान, रस्मुल ख़त और अपनी तहज़ीब की हिफाजत कर सकें। अक़लियतों में किन मज़ाहिब के नाम मानने वालों शामिल हैं? मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। अक़लियतों को तालीम इदारे कायम करने और उनके निज़ाम करने का हक़, दफ़ा 30। आइन के इस दफ़ा के तहत मजहबी और लिसानी अक़लियतों को अपनी पसंद के तालीमी इदारे कायम करने और उनके इंतज़ाम करने का पूरा हक़ व आज़ादी हासिल है, लेकिन उन्हें हुकूमत के ज़रिए बनाए गए असूलों और क़ायदों को मानना और उन पर अमल करना ज़रूरी है। सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका, दफ़ा 16। इस दफ़ा के मुताबिक सरकारी नौकरी में सबको बराबरी मौका हासिल हैं। किसी के साथ भी मज़हब, नस्ल, जिन्स, मकाम, पैदाइश या दीगर किसी भी बुनियाद पर भेदभाव नहीं बरता जा सकता। अलबत्ता दर्ज फहरस्त ज़ातों, कबीलों और पेशमानदा तबक़ात को दूसरे तबक़ात के बराबर लाने की नीयत से
रियायत दी जा सकती है। छूत छात का खात्मा, दफ़ा 17। इस दफ़ा के ज़रिए छूत छात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो कई ऐसे कानून मौजूद हैं जिनके तहत उसे सज़ा दी जा सकती है। खिताबात का ख़ात्मा, दफ़ा 18। इस दफ़ा के ज़रिए खिताबात जैसे राजा, महाराजा, नवाब, खान, बहादुर वग़ैरह ख़त्म कर दिए गए हैं। अब नाम के साथ उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ़ आज़ादियों का हक़, दफ़ा 19। इस दफ़ा के तहत तमाम शहरियों को इजहार राय बग़ैर हथियारों के पुरअमन तरीके से जमा होने, अंजुमनें या यूनियन कायम करने, मुल्क में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी है। अलबत्ता किसी माकूल बुनियाद पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। किसी भी मुजरिम को जुर्म के वक्त लागू कानून के तहत सज़ा देना, दफ़ा 20। किसी भी मजरूम को सिर्फ जुर्म के वक्त लागू कानून के मुताबिक ही सज़ा दी जा सकती है। अब हमारे मुल्क में मुजरिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक नया कानून लागू हो गया है, लेकिन जो मुकदमे पहले से चल रहे हैं उन पर पुराना कानून ही लागू होगा। छोटे बच्चों से कारखानों वगैरह काम कराने की मुमानियात, दफ़ा 24। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या कान में या किसी ख़तरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। इंसानों की तिजारत और जबरन खिदमत लेने की मुमानियात, दफ़ा 23। आइन की इस दफ़ा के मुताबिक इंसानों की तिजारत मना है और उनसे ना तो जबरन कोई काम कराया जा सकता है और ना ही बेगार यानी किसी को मुनासिब मजदूरी ना देकर या बग़ैर किसी मजदूर के ज़बरदस्ती या किसी दबाव के तहत कोई काम कराना। बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का हक़। अगर किसी शख्स के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करके अपना हक़ हासिल कर सकता है। बच्चों की जानिब से भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आइन में और बहुत सी बातें शामिल हैं, मगर उन सब का यहाँ इहाता करना मुमकिन नहीं। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आइन के तहत आपके कुछ बुनियादी फ़राइज़ भी हैं। हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वह आइन पर अमल करे, मुल्क के झंडे और कौमी तराने का एहतराम करे, मुल्क की हिफाजत करें, बेवक्त ज़रूरत कौमी खिदमत अंजाम दे, आम भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ दे, ख़वातीन का एहतराम करे, कुदरती माहौल को महफूज रखे और जानदारों के ताईन मोहब्बत और शफ़क़त का जज्बा रखें। बातचीत करते हैं, हमारे बात करने का तरीक़ा मुतासिर कन होना चाहिए, यानी हम जो कह रहे हैं उसका असर सुनने पर अच्छा होना चाहिए और आपकी गुफ्तगू से ही सुनने वालों पर इतने अच्छे असरात पड़ने चाहिए कि वो शख्स कहे कितना समझदार और ज़िम्मेदार बन सके। वो आपके वालिदीन और उस्ताद की भी तारीफ़ करेगा कि कितनी अच्छी तरबियत दी है। करता है मुझसे रोज़ कमाल सखन सवाल, तशहीर चाहिए कि पजीराई चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं उसे सामे बिल्कुल उसी तरह समझ रहा है ना, उस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। हुस्न कलाम का अंदाज़ बेहतरीन होगा तो वह सही तरह से समझा जाएगा। उसके लिए आपका अंदाज़ बयान वाज़ेह होगा और ख़ुद एतमादी भी शामिल होगी। तो देखिए, हर इंसान आपसे गुफ्तगू करके खुशी महसूस करेगा। किसी शख्स से या इज्तिमा के सामने मुखातिब होने से कबल गौर व फ़िक्र करके बोलिए। तर्ज़ बयान और आदाब का लिहाज रखें तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, वरना बेकौल हफीज़ जालंधरी, जाने क्या कह दिया था
रोज़ अज़ल आज तक इम्तिहान है प्यार से, कि मिस्दाक हमारी बात बेमकसद हो जाएगी। सदाकत पसंदी और ईमानदारी का ख्याल ज़रूर रखें। हमेशा ख़ुद की ज़ात से भी सच्चाई और ईमानदारी बरतें। मसनूई मुस्कराहट और बनावटी लफ्ज़ों से जंजाल में ख़ुद को पोशीदा ना रखें। देखने और सुनने वाले गज़ब की नज़र रखते हैं, वो लोगों के चेहरों के पीछे का हाल पढ़ लेते हैं। होशियार दौरंदेश होना अच्छी बात है, लेकिन बनावटी रंग अपने ऊपर ना चढ़ाएं। गुफ्तगू के दौरान बनावटी बातें रिश्तों को कमज़ोर करती हैं। आपके अदा किए गए अल्फाज आपके ख़यालात की तर्जमानी करते हैं। आपके सोचने का अमल समझ में आता है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच कर कीजिए। पहले तोलो और फिर बोलो। आपके ज़रिए कहे गए लफ्ज़ों से दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ों को हथियार भी कहा जाता है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ दोबारा वापस नहीं लिए जाते। भारत के साबिर वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी एक उम्दा मुक़र्रर थे और सामीन उनसे फ़ौरन वाबस्ता हो जाते थे। वह अपने लफ्ज़ों को बहुत सोच कर बोलते थे और यही बात दीगर मुतासरीन मुक़र्ररीन के सामने के मामले में सच है। अपने लफ्ज़ों को मुंतखब करके दुरुस्त अंदाज में दौरान गुफ्तगू जो इस्तेमाल करते हैं, उससे इंसान की दिमागी वसात, तजर्बात और जहानत का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जब आज़ादी हासिल हुई, तब पंडित नेहरू के कहे अल्फाज में आपको बताती हूँ। याद रखें, उन लफ्ज़ों को ज़िंदगी में काम आएंगे। दरमियानी रात को उस घड़ी जब पूरा आलम नींद की आगोश में सो रहा होगा, तब हमारे देश में आज़ादी की एक नई सुबह रोशन होगी। तवील मुद्दत से ग़ुलामी के नीचे दबे हुए मुल्क को नई ज़िंदगी मिलेगी। तारीख़ में आज भी ये अल्फाज ताबंदा है। अपने दिल ख़यालात ही अपना अहद, मरतबा, मकसद, तहरीक और तजर्बात की गहराई पर असर अंदाज होते हैं। हमारे दिल में जितनी बातें वाज़े होगी, हम उतना ही पुरअसर अंदाज में लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। उसका मफ़हूम ये भी होता है कि बच्चों, जिस मौजू पर आप बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसकी मालूमात का कनूस उतना ही वासे होना चाहिए। एक बात याद रखिए, जब आप बात करते हैं तो अपनी जिस्मानी हरकत व सकनात को अपने काबू में रखना सीखें। आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ही जिस्मानी नकल व हरकत हो तो आपकी ज़हनी और जिस्मानी यकसनियत बखूबी असरअंदाज होगी। हम जो कहना चाह रहे हैं वो हमारे उसूल से, हमारे राय से जुड़ना ज़रूरी है। आप अपनी गुफ्तगू का लहजा, ज़ेर व बम, शिद्दत, हम आहंगी, दर्जा और ताल मील को बदलते रहें, तब आप महसूस करेंगे कि सुनने वाला आपके एक लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी काबिलियत पर लोगों को खुद एतमाद होने लगता है। पहले तो उम्दा सामे बनने की कोशिश कीजिए और अपनी गुफ्तगू पर पुरअसर बनाने के लिए कुछ वक्त लीजिए। अगर आप स्कूल के ज़माने से ही बोलने की तकरीर करने की आदत डाल लेंगे तो आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा होगा और मुस्तक़बिल में आप एक बेहतरीन ख़तीब बन सकते हैं। दौरान गुफ्तगू नामाकूल या गैर मौज़ू लफ्ज़ों की अदायगी भी आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है और इसी गैर ज़िम्मेदारी के बास किसी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी हलचल, अफर तफरी और बहस छिड़ सकती है। एक गलत लफ्ज़ की अदायगी भी तर्ज बयान के मफ़हूम को बदल सकती है। जब बात करते हैं तब उस बात का अंदाज़ ज़रूर लगाएं लें कि सुनने वालों ने आपका मकसद अच्छी तरह समझ लिया है, आपका पैगाम मुनासिब तौर पर पहुंच पाया है या नहीं, ये समझना ज़रूरी है। अगर आपके मुखातिब को
आपका कहा समझ में ना आ रहा हो तो उसे कसूरवार ना समझें, बल्कि आप दौरान गुफ्तगू कहीं कम पड़ रही हैं या मौजू से हट कर बात कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी को कबूल कर लीजिए। अभी आप मदारिस या स्कूल में ज़ेर तालीम हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके उस्ताद या सरपरस्त आपको किसी मौके पर तकरीर लिख कर देते हैं, या अगर आप ज़हीन हैं तो छोटी तकरीर खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी लिखो मौके पर मुताबिक लिखो। त्यौहार हो, आज़ादी का दिन हो, या किसी शख्सियत पर बोलना हो या हालात पर भी हो, अपने ख़यालात को जमा करके सिलसिलेवार लिखना शुरू करें और उसे रटने की गलती भी ना करें। रट्टो तोते अक्सर स्टेज पर भूल जाते हैं, फिर आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। वैसे डरने की कोई बात नहीं है। हर इंसान शुरू में तकरीर करते वक्त लड़खड़ाता है, इसलिए उसे समझ लेना चाहिए तो आप पर खुद एतमाद के साथ बोल सकेंगे और सुनने वाले महसूस ही नहीं कर होगा कि आपको किसी ने लिख कर दिया है। एक स्कूल का वाक़ा है कि वहाँ स्काउट गाइड के मुकाबले जारी हैं। एक बच्चे को टीचर ने तकरीर लिख कर दी। वो रोज़ाना याद तो कर रहा था लेकिन सिर्फ रट रहा था। अब जिस रोज़ जलसा था, बच्चों को इनामात दिए जाने वाले थे, उस बच्चे को तकरीर करनी थी। लड़का जब तकरीर करने खड़ा हुआ तो कुछ पैराग्राफ बोलने के बाद वो तकरीर भूलने लगा। सब बच्चों के वालिदीन के सामने बैठे हुए थे। उस बच्चे की माँ भी सुन रही थी। अचानक बच्चा तकरीर भूल गया। उस्ताद ने इशारे से कहा कि मैं पर्दे के पीछे से बोलता जाता हूँ, तो मेरी आवाज़ सुनकर बोलना शुरू करो। शागिर्द ने वैसा ही किया और उस तरह तकरीर ख़त्म हो गई। सामीन ने तालियां बजाकर बच्चे की हौसला अफजाई की। तब उस्ताद स्टेज पर आकर उस बच्चे को शाबाशी देने लगे कि इस बच्चे की हिम्मत देखिए, वो डटा रहा, स्टेज छोड़कर गया नहीं और ना ही खौफ ज़्यादा हुआ। उस्ताद ने तारीफ़ करके बच्चे की हिम्मत बधाई। आइंदा क्या वो बच्चा तकरीर करने से डरेगा? नहीं। उसने जैसे भी तकरीर के सामीन और उस्ताद ने उसकी खूब हौसला अफजाई की। एक कामयाब उस्ताद उस तरह अपने बच्चे को एहसास कमतरी से बचा भी लेता है और वो कहते हैं, गिरते हैं शहसूर ही मैदान जंग में। हुकूमत हिंद का कसीर लिसानी फार्मूला कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तनाज़ुर में हमारे मुल्क भारत में मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के तहत तालीम के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद बार तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। पॉलिसी किसी भी मुल्क का अहम दस्तावेज़ होता है और तालीम के मैदान में उसकी हैसियत एक रहनुमा उसूल की होती है। मुल्क के साथ साथ रियासतें उसी की रोशनी में अपने स्कूल के तालीमी अमूर में तब्दीलियाँ लाती रहती हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसे तालीम व ज़ुबान की ज़रूरत ना हो, ख़ासकर बुनियादी तालीम की, क्योंकि आला तालीम बुनियादी तालीम पर ही मुनहसर होती है। अल्फाज, हरूफ, जुमले, ख़यालात, माफ़ी ज़मीर का इजहार, इनकी तफ़हीम और जोड़ घटाना, हिसाब किताब की सलाहियत की ज़रूरत हमें हर जगह होती है। इसके बग़ैर अच्छी ज़िंदगी बसर करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज की ज़िंदगी तालीम के बग़ैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जिस तरह से आज का माशरा मुसलसल टेक्निकल और हाईटेक और ग्लोबल होता जा रहा है, ऐसे वक्त में ज़ुबान और ख़ास कर मादरी ज़ुबान और कसीर लिसानियात की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। नीज़ मुल्क की तामीर व तरक्की में ज़ुबानें अहम किरदार अदा करती हैं। साथ ही इत्तेहाद और कौमी इंज़माम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। इसी बात के पेश नज़र भारत जैसे मुल्क में शुरू से ही लिसानी तकसीरियत पर
زور دیا گیا ہے، اور ہماری پہلی قومی تعلیمی پالیسی 1968 کے آغاز کے وقت سے ہی ثالثانی فارمولہ کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس امر کو مختلف کمیٹیوں اور کمیشن نے ضروری سمجھا، اور اب پھر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے بھی اس کی پرزور وکالت کی ہے۔ زبان کی تکثیریت کے حوالے سے قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 تا 8 برس کی عمر کے عرصے میں بچے زبان زیادہ تیز سے سیکھتے ہیں، اور یہ کہ زیادہ زبانوں کے استعمال سے چھوٹے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس بات کے پیش نظر حکومت ہند نے طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کثیر لسانی فارمولہ تیار کیا تاکہ ہندوستان کے تمام بچے کم سے کم 3 زبانوں کے عالم ہوں، جس میں ایک علاقائی زبان سمیت 2 مقامی بھارتی زبان اور انگریزی لازمی زبان کے طور پر شامل ہو۔ زبان کے انتخاب میں بچے اور ریاستیں آزاد ہوں گے۔ اس فارمولے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں میڈیم آف انسٹرکشن بچے کی مقامی زبان ہوگی، ساتھ ہی وہ آگے چل کر اپنی منتخب زبان کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی علمی نشو و نما میں زبانیں سیکھنا بھی شامل ہے، نیز جو بچہ جتنی زیادہ زبانیں جانتا ہے اس کی نشو و نما اور تعلیمی صلاحیت اتنی ہی بہتر ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ نیز اس سے کثیر لسانی اور بین الاقوامی ہم آہنگی کے فروغ میں بھی مدد ملے گی۔ بچے ہوں یا بوڑھے، سب اپنی علاقائی زبان کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں، بس یوں کہیں کہ دل سے نکلتی ہیں اور دل میں اترتی ہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ تاہم بچے اپنی زبان میں زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس کے پیش نظر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے بنیادی خواندگی کثیر لسانی صلاحیت کے مقصد کو پالنے کی خاطر اساتذہ کی تقریر میں علاقائی اساتذہ کو ترجیح دے جانے پر زور دیتا ہے، اور پھر ایسے اساتذہ کی تقریر پر زور دیا ہے جو علاقائی زبانوں سے مانوس ہو۔ قومی تعلیمی پالیسی نے یہ ایک وقت 2 باتوں کا خیال رکھا، ایک طرح اساتذہ کی تقریر، دوسری جانب ایسے اساتذہ کو ترجیح جو علاقائی زبان سے واقف ہوں۔ علاقائی اساتذہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کے سیکھنے کی رفتار تیز ہوگی، نیز اساتذہ کی بحالی کا یہ قاعدہ ہوگا کہ پہلے سے تقرر کردہ اساتذہ کا بوجھ کم ہوگا، جس کی وجہ سے اساتذہ محنت و لگن سے اپنی تدریس کو جاری رکھ سکیں گے، اور اس کے ذریعہ حکومت طلباء اساتذہ کی شرح 1:30 کو اسکولی سطح پر یقینی بنانے کی ہدف کو بھی پورا کر سکے گی۔ آموزش یعنی لرننگ کے لیے خوشگوار ماحول کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ماحول خوشگوار نہیں ہے تو 100% تعلیم ممکن نہیں ہے، اور یہ خوشگواری پسندیدہ زبان کے ذریعے بھی لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہر طرح سے ماحول کو خوشگوار بنایا جائے گا۔ طلباء کے لیے ہر سطح پر خوشگوار اور متاثر کن کتابیں تیار کی جائیں گی، جس میں تمام مقامی اور ہندوستانی زبانوں میں اعلیٰ معیار کے ترجمے ضرورت کے مطابق ٹیکنالوجی پر مبنی کے ذریعے تیار کیا جائے گا۔ جب یہ کتابیں تراجم تیار ہو جائیں گے تو طلباء تک اس کی رسائی کو آسان اور عام کرنے کے لیے کتب خانوں کا قیام ہوگا، اور یہ کتابیں اسکول اور مقامی عوامی لائبریریوں میں واسع پیمانے پر دستیاب ہوں گی۔ نیز اس طرح کی کتب کو فروغ دینے اور پڑھنے کے کلچر کو عام کرنے کے لیے پورے ملک میں سرکاری اور اسکول کی لائبریریوں کو نمایاں طور پر بڑھایا جائے گا۔ ان کتب تک کہیں سے بھی کسی بھی وقت ہر کسی کی رسائی کو عام اور یقینی بنانے کے لیے
डिजिटल कुतुब खाने, ई लाइब्रेरियाँ भी तैयार की जाएंगी। स्कूल के औकात के अलावा माशरे की खिदमत के लिए स्कूल लाइब्रेरियाँ ख़ासकर देहातों में कायम की जाएगी। पढ़ाई के फ़रोग़ में मज़ीद सहूलियत फ़राहम करने के लिए बुक क्लब आवामी या स्कूल के कुतुब खानों में कायम किए जाएंगे। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी मुरतब की जाएगी। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों, मुख्तलिफ़ सतहों पर मुनफरद तर्ज की किताबों की दस्तयाबी, रसाई, मियारी और किताबों के क़ारीन को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इक़दामात किए जाएंगे। इलाक़ाई ज़ुबानों की जो हौसला अफजाई के लिए ज़ुबान के नए इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा और तर्जमा और तर्जमानी का एक हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। अगर वसी पैमाने पर तर्जमा किया जा सकता है तो ये कौमी इंज़माम और मकामी या क्लासिकी ज़ुबानों के अदब व इल्म तक रसाई हासिल करने में मुहर्रक साबित होगा। संस्कृत और दीगर क्लासिकी ज़ुबानों जैसे क्लासिकल तामिल को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। एक कौमी इंस्टीट्यूट बराए पाली, प्राकृत और फ़ारसी भी कायम किया जाना है। इशाअत को भी एक छोटे पैमाने की सनअत या तरजीही शोबे के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए ताकि सस्ती कीमत पर मियारी किताबों तक रसाई हो सके और लाइब्रेरी की तमाम ग्रांट का 50% हिंदुस्तानी ज़ुबानों की किताबें के लिए इस्तेमाल किया जाना भी उस पॉलिसी का मकसद है। उन ज़ुबानों की तरोवीज व इशाअत के लिए ये पॉलिसी बहुत ही जामे है। जहाँ आम इंसानों के लिए बहुत सी बातें दर्ज हैं, वहीं समाज के बहुत से अफराद जो किसी माजूरी का शिकार है, ख़ासकर समाज से महरूम अफराद के लिए इलाक़ाई अलामती ज़ुबान यानी साइन लैंग्वेज के एहतराम के साथ कौमी सतह पर उसकी मियारी बंदी की बात कही गई है। किसी भी मज़मून की तफ़हीम को बेहतर बनाने की खातिर हुकूमत हिंद ने ज़ुबान के ताल्लुक़ से ये इक़दामात किए हैं। ये एक अटल हकीकत भी है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन नज़रियात हम अपनी ज़ुबान यानी घर में बोली जाने वाली या मादरी ज़ुबान में बआसानी सीख जाएंगे। हुकूमत हिंद पॉलिसी में ये कहा है, जहाँ तक मुमकिन हो ज़रिया तालीम कम अज़ कम क्लास 5 तक और तरजीहान क्लास 8 या उसके बाद तक घर में बोली जाने वाली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान यानी इलाक़ाई ज़ुबान ख़त्ते की ज़ुबान रखी जाएगी। उसके बाद घर में बोली जाने वाली इलाक़ाई ज़ुबान की पढ़ाई जहाँ मुमकिन होगा जारी रखी जाएगी। ये तरीक़ाकार सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में अपनाया जाएगा। आगे उसी पॉलिसी में एक और बहुत ही उम्दा और अच्छी बात ये कही गई है कि कोशिश की जाएगी कि बच्चों के बोलने वाली ज़ुबान और ज़रिया तालीम की ज़ुबान के फ़र्क को कम से कम किया जाए। बरसों से हमारे असातिज़ा, रहनुमा, मियारान कौम इस बात के लिए कोशां हैं कि हमारे मुल्क में अमन और शांति, इल्म व हुनर, अदब व सक़ाफ़त का गवहारा बना रहे। इस तरह जब हम कौमी तालीमी पॉलिसी पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हिंदुस्तानी रवायात और सक़ाफ़त के मुताबिक हैं और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के कसीर लिसानी इक़दाम से मुल्क के कसीर लिसानी और साह लिसानी नज़रिए को मज़ीद क़ुव्वत मिलती है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में दर्ज इस इक़्तिबास से हमारे ज़ुबान और कसर लिसानियात की अज़मत अयां हो जाती है। भारत की ज़ुबानें दुनिया भर की ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा वसी, सबसे ज़्यादा साइंसी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा वाज़ेह और मतलब अदा करने वाली ज़ुबानें हैं। उनमें क़दीम और जदीदियत, नसर और शायरी, फ़िल्म और मौसीकी जो उन ज़ुबानों में लिखी गई हैं, ये सब मिलकर भारत की कौमी शनाख्त और अज़मत की अक्कासी हैं। स्कूल रोज़ जाना, पढ़ने में दिल लगाना, स्कूल रोज़ जाना, करना नम तुम बहाना, स्कूल रोज़ जाना, हर सुबह घर से जाना, तुम हंसते मुस्कुराते, हर शाम लौट आना, स्कूल रोज़ जाना,
पढ़ लिख के तुम लोग को करने हैं पूरे ख्वाब सबके, ये बात मत भुलाना स्कूल रोज़ जाना। संडे हो या मंडे खाना कभी ना ढूंढे, डेली सबक सुनाना स्कूल रोज़ जाना। ये वक्त की जो दौलत हासिल हुई है तुमको, बेकार मत गंवाना स्कूल रोज़ जाना। हक बात पर जो बच्चे करते नहीं अमल, वो पाते नहीं ठिकाना स्कूल रोज़ जाना। बे है कौल माँ का सच्चा, अच्छा वही है बच्चा है जिसने दिल से जाना स्कूल रोज़ जाना। ये इल्म की है दौलत सबसे अजीम दौलत, जैसे भी हो कमाना स्कूल रोज़ जाना। बच्चों की कामयाबी असातिज़ा की मरहून मिन्नत। उस्ताद दुनिया का सबसे खुश नसीब शख्स है। खुश नसीब इस लिहाज से है कि उसे वो फ़र्ज़ अता किया गया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों और पैगंबरों को दिया था, यानी लोगों को तालीम देना और दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना। इल्म का दर्जा बहुत बुलंद है। जो शख्स इल्म हासिल करता है और उस इल्म को दूसरों तक फैलाता है, उसका मर्तबा यकीनन बहुत ही बुलंद है। जब उस्ताद नहीं थे तो दुनिया में जहालत और तारीकी थी। उस्ताद ने उस तारीकी को इल्म की रोशनी से दूर किया। इल्म की बदौलत दुनिया में तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी फैल गई। लोगों में रहने सहने, उठने बैठने, खाने पीने का सलीका आया। हर लिहाज से हर सतह पर तरक्की आई। चूँकि इस तरक्की और तहज़ीब का सहारा उस्ताद के सर है, इसलिए उस्ताद की अहमियत हर इंसान के लिए मुसल्लम है और हर इंसान को चाहिए कि वो अपने उस्ताद का एहतराम करे। हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो शागिर्द अपने असातिज़ा की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, वो इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बरअक्स जो बच्चे अपने उस्ताद का एहतराम कम करते हैं या नहीं करते हैं, वो तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। लिहाजा तमाम बच्चों का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त हर हाल में करें। उस्ताद की शख्सियत एहतराम के लायक हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि एहतराम से क्या मुराद है और हम उस्ताद का एहतराम किस तरह कर सकते हैं। एहतराम से मुराद आदाब है, आदाब से पेश आना है। जहाँ तक मुमकिन हो सके उस्ताद का अदब करें। उनसे मुलाकात हो तो सलाम में पहली करना, उस्ताद के हुक्म की तामील करना, उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत जानना, उनके काम को अपना काम समझकर अंजाम देना। उसके साथ ही उस्ताद के एहतराम का एक पहलू ये भी है कि वो जो कुछ भी पढ़ाएं उसे तवज्जो से सुने। तालीम के दौरान शौक़ और दिलचस्पी का सबूत दें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे उस्ताद के नाराज़ हो जाने का अंदेशा हो। किसी भी कौम की तरक्की तालीम पर मुनहसर होती है और तालीम की तरक्की उस्ताद की ज़ात पर मुनहसर है। उस्ताद की इज़्ज़त जिस कदर ज़्यादा होगी, उसका मर्तबा जिस कदर बुलंद होगा, इल्म उसी कदर ज़्यादा फैले फूलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। जो कौम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना नहीं जानती, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। कौम ज़िंदगी में उस्ताद की हैसियत इस रोशन सितारे की मानंद है जो अंधेरे में मुसाफिर को रास्ता दिखाने का काम करता है, उन्हें हिफाजत के साथ मंजिल पर पहुंचने का पता देता है। उस्ताद की मिसाल इस चिराग जैसी है जिससे हज़ारों चिराग जलाए जा सकते हैं। उस्ताद पूरी कौम का मोहसिन होता है और मोहसिन का एहतराम कौम के हर शख्स पर लाजिम है। अच्छे उस्ताद माशरे की तश्कील में नुमाया किरदार अदा करते हैं। उनकी मेहनत और क़ुरबानी से बेहतरीन कौमी वजूद में आती हैं। तारीख़ के औराक पलटने पर अंदाज़ा होता है कि इंसानी तारीख़ असातिज़ा के एहतराम व तकरीम की सुनहरी दास्तानों से भरी हुई है।
बादशाह वक्त, वली, बुजुर्गान दीन, सहाबा किराम सबों ने अपने असातिज़ा की ताज़ीम और तकरीम की बेहतरीन मिसालें पेश की हैं। उस्ताद की महब्बत की मेहनत का ही नतीजा है कि इंसान आसमानों की सैर करता है, चाँद और सितारों पर कमंदीन डालता है। ये बैन हकीकत है कि उस्ताद के बग़ैर इंसान इस नाबीना शख्स की तरह है जो बग़ैर सहारे सफ़र पर निकल पड़े। नतीजा क्या होगा उसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। माशरे में जहाँ एक माँ की आगोश को बच्चे की पहली दरसगाह करार देने के साथ एक मिसाली माँ को 1000 असातिज़ा पर फ़ौक़ियत दी गई है, वहीं एक उस्ताद को अपनी ज़ात में सारी कायनात को बच्चे के लिए एक दरसगाह बनाने की ताकत रखने की वजह से रूहानी वालिद का दर्जा दिया गया है। बाप बच्चे को जहाँ उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वहीं उस्ताद बच्चे को ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की तलक़ीन करता है। सिकंदर आज़म से किसी ने पूछा कि आप अपने उस्ताद की ताज़ीम इस दर्जा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके वालिदीन उसे आसमानों से ज़मीन पर ले आए, जबकि उस्ताद उसको ज़मीन से आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाता है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद और फ़र्ज़ ज़िंदगी की समझ बोझ हासिल करना है। इस मकसद के लिए जो कोशिश करते हैं उसे तालीम कहते हैं। ये तालीम रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी हर तरह की हो सकती है। इल्म की राह पर मनाजिल का हुसूल उस्ताद के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। इसलिए बच्चों, हमें इस शख्स का एहतराम करना चाहिए जिसने ज़िंदगी में एक हरफ भी सिखा दिया। एक हरफ सिखाने वाला उस्ताद का दर्जा रखता है। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन वो बादशाह गर ज़रूर होता है। लिहाजा अपने उस्ताद की इज़्ज़त दिल व जान से करें। 2 अशार के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखा ना कोई कोह कन फरहाद के बग़ैर, आता नहीं है कोई फ़न उस्ताद के बग़ैर। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। अगर कहीं स्कूल में अपने में जो टीचर होता, हंसकर करता बातचीत में बच्चे हंसते सारे, हर बच्चा उड़ती चढ़ाया सा, छूता चाँद सितारे। मैं कोशिश करता कि बच्चा बने ना रट्टो तोता, मैं जो टीचर होता। धमाचू कड़ी पर ना होती कोई भी पाबंदी, हंसी ठहाकों को क्लास में मिलती नई बुलंदी। छड़ी ना होती पास तो कोई, बच्चा कभी ना रोता, मैं जो टीचर होता। होते नए लतीफ़े हर दिन, किस्से और कहानी, सुनता हर बच्चे के दिल की बातें सब अनजाने। हंसी खुशी के दरिया में सबको लगवाता गोता, मैं जो टीचर होता। 10वीं क्लास की तालिबा 14 साला मदीहा सिद्दीकी को घर में सब नन्ही कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो चारों बहन भाइयों में सबसे छोटी यानी नन्ही थी। अगरचे स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम मदीहा सिद्दीकी बिन्त उमर सिद्दीकी ही दर्ज है, लेकिन अक्सर हम जमात लड़कियां यहाँ तक कि क्लास टीचर मिसेस उस्मानी भी मदीहा को नन्ही ही पुकारती हैं, क्योंकि वो मदीहा की पड़ोसन हैं और उनका नन्ही के घर आना जाना रहता है। इसलिए जब आज मिसेस उस्मानी ने क्लास में ये ऐलान किया कि इस साल याम असातिज़ा पर उनकी क्लास से प्रिंसिपल आलिया फ़ारूकी ने मदीहा अरफ नन्ही को एक दिन का टीचर बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि नन्ही गुज़श्ता 5 साल से हर क्लास में टॉप करती आई है। नन्ही दर्जा 16 ए को
उर्दू पढ़ाएंगी। उस ऐलान को सुनकर जहाँ सब तलबात बहुत खुश हुए, वह नन्ही सोच में पड़ गई। मैं टीचर कैसे बन सकती हूँ? मैं तो खुद एक तालिबा हूँ और दर्जा 6 की तालिबात तो मुझे आपा कहकर बुलाती हैं, इसलिए वो मुझे अपना टीचर कैसे तस्लीम कर लेंगे। इसलिए नन्ही ने अपनी पक्की सहेली रेखा शर्मा के कान में चुपके से अपने तजब्जब का इजहार किया तो उसके मशवरा दिया। उसने, ये अफसर तस्लीम कर लो, सब लड़कियां तुम्हें अस्तानी मान लेंगी। ये सुनकर नन्ही खड़ी हो गई और क्लास टीचर का अदब बजालाते हुए शुक्रिया अदा किया और कहा, मैडम, मैं आपका और प्रिंसिपल मैडम का हुक्म बसर व चश्म कबूल करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपना फ़र्ज़ पूरी जिम्मेदारी से अदा करेंगे। यह सुनकर क्लास टीचर ने नन्ही को दुआएं दी और अपने पास बुलाकर उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। एक दूसरी तलबा सुलमा ने दरियाफ्त किया, मैडम, टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? यह बहुत उम्दा सवाल है। दरअसल प्यारे बच्चों, 5 सितंबर 1868 को हमारे आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान जब निशान के अवलीन नायब सदर जमहूरिया और दूसरे सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सूबा तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब मद्रास यूनिवर्सिटी में इंडियन फ़िलासफ़ी, हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा के आलमी शहरत याफ्ता आलिम और फाजिल थे और सारी दुनिया से इल्म के प्यासे अफराद उनका लेक्चर सुनने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे। चूँकि डॉक्टर राधाकृष्णन हिंदुस्तानी तहज़ीब और तमद्दुन के अजीम नुमाइंदा थे, इसलिए हुकूमत हिंद ने उन्हें 1954 में मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा था। मिसेस उस्मानी ने मज़ीद बताया, एक मरतबा प्रोफेसर साहिब के शागिर्दों ने उनसे इजाज़त तलब की कि वो सब डॉक्टर साहिब का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तब राधाकृष्णन ने उस शर्त के साथ इजाज़त दी कि उनका यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। ऐसा ही किया गया और तब से हर साल 5 सितंबर टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और उस दिन बेहतरीन असातिज़ा को एजाज़ भी नवाजा जाता है। मदीहा ने कुछ झुकते हुए पूछा, मैडम, चूँकि आप दर्जा 6A को उर्दू पढ़ाती हैं, इसलिए मेरी रहनुमाई फरमाई है कि 5 सितंबर को क्लास में कौन सा सबक पढ़ाऊं। मिसेस उस्मानी ने संजीदगी से कहा, आप यौम असातिज़ा पर क्लास को 8वें सबक पढ़ाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी ईदगाह पर मुश्तमिल है। शुक्रिया मैडम, मैं आज ही बल्कि अभी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर मुंशी प्रेमचंद और उनकी उस कहानी पर नोट तैयार कर लूँगी। बाद आज़ा मदीहा स्कूल से अपने घर पहुंची तो वालिदीन और बहन भाइयों को उसने एक दिन की टीचर बनने की खुशखबरी सुनाई तो सब बहुत खुश हुए और नन्ही को गले लगाकर मुबारकबाद नीज़ कामयाबी की दुआएं दी। 5 सितंबर को नन्ही अस्तानी की तरह शाने पर परस डालकर और हाथ में डायरी लेकर अपने स्कूल जारी थी तो सिर्फ तालिबात ही नहीं बल्कि महल्ले वाले भी नन्ही के बदले हुए रूप को हैरत से देख रहे थे। मगर नन्ही पर पुरएतमाद ढंग से प्रिंसिपल साहिबा और उस्तानियों को सलाम करती हुई ढरते हुए दिल के साथ क्लास में दाखिल हुई और तालिबात को सलाम किया तो सब वालेकुम सलाम कहकर खड़े हो गए तो नन्ही ने उन्हें प्लीज़ सिट डाउन कहकर बैठने के इशारा किया। नन्ही अस्तानी ने तालिबात से अपनी अपनी किताबें प्रेमचंद की कहानी वाला सफ़ा खोलने के लिए कहा और मुनहसर अल्फाज में प्रेमचंद की हयात और कारनामों पर रोशनी डालने के बाद क्लास की एक सच्ची सहेला
सैफी से कहानी ईदगाह पढ़ने के लिए कहा। जब शहला ने आधी कहानी पढ़ ली तो नन्ही ने बाकी आधी कहानी पढ़ने के लिए तरन्नुम फरीकी से कहा। उसके बाद नन्ही ने कहानी के बच्चा किरदार कुर्बानी और अपनी गुर्बत दादी से उसकी मोहब्बत पर रोशनी डाली। दरअसल बच्चा हामिद अपने एक पैसे से ना तो झोलता और ना ही कुछ खाता है, बल्कि अपनी गुर्बत दादी के लिए एक पैसे में चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि चूल्हे पर रोटी पकाने हुए दादी के हाथ जल जाते थे। दरअसल तब एक पैसे की कदर आज के 25 रुपये के बराबर थी। कुछ लड़कियां ये कहानी पढ़कर रोने लगती हैं तो नन्ही उन्हें समझाती है। पीरियड ख़त्म होने के बाद जब नन्ही क्लास से बाहर आती है तो क्लास टीचर उसकी पीठ थपथपा कर शाबाशी देती है। कहती हैं, नन्ही आसानी, आपने बहुत उम्दा पढ़ाया। नन्ही सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करती हैं और अपने दिल में फैसला करती हैं कि बड़े होकर वो अस्तानी ही बनेगी। तालीम के रंग। उसामा बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद किसी दफ्तर में छोटी सी मुलाजमत करते थे। उनकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वो उसामा की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। उसामा ने बड़ी मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की। वो गर्मी की छुट्टियों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता और जो आमदनी होती जमा कर लेता था कि आइंदा साल के लिए किताबें ख़रीद सकें। उसके अब्बू कहते कि बेटा, आज कितने पैसे मिले हैं। उसामा कुछ पैसे घर के खर्च के लिए देता और बाकी अपनी किताबें ख़रीदने के लिए रखता। एक दिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंचा तो पटेल साहब के बेटा दुकान में पढ़ाई कर रहा था। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? उसामा ने पूछा। दुकानदार के बेटे ने कहा, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। इंजीनियर बनने के लिए बहुत से रुपयों की ज़रूरत होती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम तो अभी काम करो। उसामा ने ये बात दिमाग में बैठा लिया कि बड़ा होकर उसे इंजीनियर बनना है। पटेल साहब के बेटे ने कहा, उसामा तुम ऐसा क्यों नहीं करते? गरीब की एक स्कूल है जहाँ कॉपी किताबें मुफ्त में मिलती हैं और कुछ रुपये भी मिलते हैं। तुम वहाँ से तालीम हासिल कर लो, वहाँ बच्चों को कुछ वजीफ़ा भी मिल जाता है। उसामा भाई, ये वजीफ़ा क्या होता है? उसामा ने मासूमियत से सवाल किया। पटेल के बेटे ने मुस्कुराहट जवाब दिया, वजीफ़ा में सरकारी 100 रुपये माहाना एक बच्चे को देती है और यूनिफॉर्म भी मुहैया करती है। ये बात उसामा ने अपने अम्मी अब्बू को बताया तो वो उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाने के लिए खुशी खुशी राज़ामंद हो गई। उसामा का एडमिशन 7वीं क्लास में सरकारी स्कूल में आसानी से हो गया, चूँकि उसामा ज़हीन और मेहनती बच्चा था और उसमें पढ़ाई करने की जुस्तजू भी थी। उसने कुछ रोज़ में ही अपना रंग जमा दिया। वो क्लास में फर्स्ट आता। उसामा दिल लगाकर पढ़ाई करने में मसरूफ़ रहा। वो क्लास के ज़हीन और मेहनती तलबा में शुमार होने लगा। टीचर भी उस पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे। एक दिन उसके टीचर क्लास में कहने लगे, उसामा तुम्हारा नाम साइंस की नुमाइश में मुंतखब किया गया है। उसामा तुम्हें कोई अच्छा मॉडल बनाकर लाना है। शहर के तमाम स्कूलों से बच्चों के मॉडल आने वाले थे। ये सुनकर उसामा बहुत खुश हुआ और मॉडल बनाने में लग गया। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में काम करता था, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों की मालूमात थी। उसने सोचा कि क्यों ना फायर अलार्म, आग से बचाव के लिए ऐसा कोई मॉडल तैयार किया जाएगा कि आग से बचा जा सके। उसको होम फायर प्रोटेक्शन कहते हैं। उसामा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और
मॉडल तैयार कराया। अल्लाह के करम से उसका मॉडल पूरे शहर के स्कूलों में फर्स्ट नंबर पर चुना गया। अगले दिन जब वो स्कूल में गया तो उसे सुबह सुबह नए खुशखबरी मिली। टीचर ने कहा, उसामा तुम्हारा मॉडल फर्स्ट आया है। स्कूल के हेड मास्टर साहब और टीचर बहुत खुश थे। उस एजुकेशन ऑफिसर ने उसे 5,000 का चेक और सर्टिफिकेट से नवाजा। उसामा बहुत खुश हुआ। उसके 5,000 का चेक आपने अम्मी अब्बू को दिखाया, वो बहुत खुश हुए। उसने ये रुपये अपनी पढ़ाई के लिए रख दे और अपनी पढ़ाई में संजीदा हो गया। वो मेहनत करता और अव्वल नंबर पर कामयाब होता था। अब उसे 10वीं जमात की पढ़ाई करनी है। अव्वल नंबर से कामयाब होकर और उसने पूरे टेक्निक कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया। जो उसे स्कूल में 5,000 रुपये मिले थे, उससे कंप्यूटर के एडमिशन की फ़ीस भरी। उसामा बहुत किफ़ायत शार के काम लेता। उसने खूब मेहनत की और बुरे लड़कों की सोहबत से भी अलग रहा। 3 साल कामयाबी हासिल की। उसे इंजीनियर भी बनना था। फर्स्ट नंबर से कामयाब होकर उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वो रात दिन अपनी पढ़ाई करता। उसके वालिदैन भी मुतमईन थे। अब उन्हें उसामा की तरफ से कोई फ़िक्र नहीं थी, उन्हें अपनी बेटी की फ़िक्र थी। उसामा की बहन भी बहुत मेहनत करती थी। ये लड़का पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कामयाबी हासिल करता। उसामा ने सोचा कि खेल से दिमाग तंदुरुस्त रहता है, जिस्म की वर्जिश होती है। उसने इलाकाई टूर्नामेंट के मुकाबले में पहला मकाम हासिल किया। बैडमिंटन में उसने कामयाबी हासिल की और ट्रॉफ़ी और सनद से नवाजा गया। सनद से उसामा के घर में सब बहुत खुश थे। कॉलेज में उसे मुबारकबाद दी जा रही थी। उस वक्त एक मकामी चैनल कार पोर्ट्स वहाँ आया। जब रिपोर्टर ने उसामा से उसकी कामयाबी का राज दरियाफ्त किया तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत करने से इंसान तो क्या नहीं कर सकता। उसने बताया कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसने मेहनत की और अपने बड़ों की दुआ ली और मेहनत और दिल लगाकर पढ़ाई करता रहा। टीवी रिपोर्टर ने उसामा से कहा कि वो अपने मुल्क के बच्चों को क्या पैगाम यानी संदेश देना चाहता है। तो उसने बड़े एतमाद से कहा, मुश्किलों को खंदा पेशानी से कबूल करना चाहो और अपनी मेहनत और लगन से मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अपनी मेहनत और जहानत का इस्तेमाल करके पढ़ाई और खेल दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेहनत से ही तालीम का रंग असरदार साबित होता है। असातिज़ा के नाम, वो इल्म के मोती है, इंसान को सजाते हैं। वो दस्त व बयां को गुलजार बनाते हैं। वो पाठ मोहब्बत का बच्चों को पढ़ाते हैं। नफ़रत की हवाओं से वो उनको बचाते हैं। जिस दिल में अंधेरा है, जिस दिल में है तारीकी, वो इल्म की मशाल को उस दिल में जलाते हैं। देते हैं सदा सबको तालीम वफ़ा की, वो क्या दर्स था गांधी का, वो उनको बताते हैं। फैलेगी ज़िया जिससे हर समत ज़माने में, यूं अपनी वफ़ाओं की कैंदिल जलाते हैं। वो ऐसे जयाले हैं, डरते नहीं तूफ़ान से, मौजों को वो दरिया में पतोर बनाते हैं। वो ऐसे मसव्वुर हैं, फ़नकार हैं, वो ऐसे वो राह के पत्थर को शाहकार बनाते हैं।